Hello and welcome to my channel Biotonic. Today we will start the very first chapter of 11th biology, that is the living world. When we just start this chapter, the first question come into our mind is what is living? Then we define living as the object exhibiting growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction are together called as living beings. We can add more to it like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, emergence, etc. and many more we can add in this. But the basic properties that a living organism must contain is growth, development, responsiveness, adaptation, reproduction. In this chapter, we will discuss one by one and explain about it. Then let's start. Characteristic of living beings. What are the characteristic which will decide that ये living beings है? First is growth. Growth is a fundamental characteristic of living beings. Growth has twin characteristic. That increase in mass is also considered as growth. Increase in number is also considered as. Suppose कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, ओके, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों में ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग कुछ भी चीज़ पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक अगर लेयर बैठ गया तो उसके मास में कुछ ना कुछ तो बढ़ा, तो वहाँ पे ग्रोथ दिखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ उसका मास तो बढ़ा. और जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें भी जब वेट पुट ऑन होता है वहाँ भी मास बढ़ता है, तो वहाँ भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलता है. तो ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देख सकते हैं. बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है. और जो नॉन लिविंग में देखते हैं वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जो कि एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है. जैसे कि हम लोग को अगर नॉन लिविंग में ग्रोथ दिखता है तो वो हम लोग को बाहर से दिखता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल किसी भी बाहरी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा. अगर डेड ऑर्गेनिज्म पे कुछ भी आ रहा है, कुछ भी एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वहाँ भी हम लोग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी. और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है. ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल से बने होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर दो सेल से दो या दो से ज़्यादा से बने होते हैं. एक से अगर बने तो इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, जो कि डिवाइड करता है या फिर ग्रोथ करता है. दोनों सेल डिवीजन के द्वारा ही करता है. और मल्टी सेलुलर भी सेल डिवीजन के रहते हैं, जैसे यूनिसेलुलर में एग्जांपल जैसे अमीबा, बैक्टीरिया एंड ऑल, ये सब हो गया. सो यहाँ हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ देख रहे हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ देख रहे हैं कि किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है. सो ग्रोथ इज टेकन एज डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ डिफाइन कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को. We will not consider as a fundamental. Okay, now second is reproduction. Okay, reproduction is of two types, asexual and sexual. Asexual means it always produced by single parent, and sexual reproduction involve two parents. Asexual reproduction is with or without involvement of gamete formation, but in sexual reproduction it must involve gamete formation. In asexual there is many examples like unicellular organisms like bacteria, algae or amoeba. It divide with the process of fission and give birth to new individual. Okay, and reproduction is synonymous with growth. मीन्स जैसे जैसे ग्रोथ होगा फिर रिप्रोडक्शन होगा. पहले ग्रोथ होगा फिर रिप्रोडक्शन. इट इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ. सेकेंड प्रोसेस इज बर्डिंग, इन विच बर्ड लाइक स्ट्रक्चर केम आउट इन विच इज सीन इन हाइड्रा. ओके, Hydra, or we can see that yeast and Hydra, in both we see budding. In planaria, that is called flatworms, there we see true regeneration. Okay, that is fragmented organism regenerates, the lost part of its body becomes a new organism. Okay, and the fungi, which
fungi and filamentous algae, the protonema of mosses, that is bryophytes, all easily multiply by fragmentation. And all the organisms either than which reproduce asexual, all are reproduce sexual, but still there are some organisms which cannot reproduce, which cannot give birth to new young ones, that are mule, worker bees, infertile human couples, etc. They don't reproduce at all. They are known as sterile or infertile, that they cannot grow to any new young ones. Hence reproduction can be regarded as characteristic of living organism. हाँ, इसको हम रिगार्ड कर सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट ये पॉसिबल नहीं कि इसको बोले कि अगर जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सम आर म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमंस, they are human, they are living organisms, but they cannot reproduce. So reproduction can be considered as living, as a characteristic of living organism, but not as exclusive defining characteristic. Okay, third it comes that metabolism. What is metabolism? Any reaction which occur in our body is considered as metabolism. Okay, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो लगातार कुछ ना कुछ सिंथेसाइज, जो कि कंटिन्यूस बायोमोलिक्यूल जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते जा रहा है, उसको अगर हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे तो हमारे अंदर कोई ना कोई रिएक्शन होगा, तभी तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेंगे. तो वो सारे रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. जैसे कि हमारे अंदर होता, पेड़ों में होता है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, हमारे अंदर होता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब में कुछ ना कुछ प्रोसेस होते हैं, तो वो सारे को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कैटाबॉलिज्म मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस. मीन्स कोई भी बड़ा सा मॉलिक्यूल्स है, अगर उसको हम किसी 2 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिए, दैट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. जैसे कि शुगर 6H12O6, इसको अगर हम लोग ब्रो कर रहे हैं तो वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एनर्जी रिलीज करता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ भी बड़ा सा मॉलिक्यूल है शुगर, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे उसको कैटाबॉलिज्म बोलेंगे. और अगर कोई न्यू मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है, जैसे कि प्रोटीन, अमीनो एसिड से हम लोग को अमीनो एसिड जब ब्रो करता है तो हम लोग को प्रोटीन मिलता है, तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म. ओके, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डोंट शो मेटाबॉलिज्म. नॉन लिविंग के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म, क्योंकि कोई प्रोसेस ही नहीं होता, दे आर डेड, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डोंट शो मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म कैन बी रिगार्डेड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग. सो वी कैन, इस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं कि अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बोल रहे हैं कि हाँ इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, इट मीन्स कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. सो इट इज़ द डिफाइनिंग, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, फोर्थ इज कॉन्शियसनेस दैट वी डिस्कस अर्लियर, की रिस्पॉन्सिवनेस, कि किसी भी स्टिमुली के प्रेजेंस में अगर हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस. तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जैसे मेटाबॉलिज्म तभी हो सकता है जब हम लाइव है, हमारे अंदर कोई ना कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, तो हम लोग को पता चल सकता है कि हाँ ये इंसान लिविंग है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है. तो रिएक्ट कौन करेगा? अगर हम ही एक इंसान ऐसे हैं, जो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि रिएक्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ के रिएक्ट कर सकते हैं. हमारे पास खुद का कॉमन सेंस नहीं कह सकते, मीन्स हमारे पास सही डिसीजन लेने की क्षमता है. जानवरों में उतने सही डिसीजन लेने की क्षमता नहीं हो सकता है. तो इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे सराउंडिंग में चेंजेज आते हैं वो सबको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. हम अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है. गर्मी आती है तो स्वेट होता है, ठंडी आता है तो चादर चाहिए होता है. तो ये सब क्या है, हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है चेंजिंग इन्वायरमेंट पे. तो एनी चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस. तो हम लोग किसके
किसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, हम लोग स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, जैसा सराउंडिंग होता है वैसा हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। इट कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। इट कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में क्या क्या आ सकता है? फिजिकल में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, साउंड। ये सारा क्या है, फिजिकल चेंज है जो कि हम लोग फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं देख के। चेंज इन टेम्परेचर, ये सारा क्या है, फिजिकल चेंज है। व्हाट आर केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस दैट आर पॉल्यूटेंट्स, एसिड्स एक्सेट्रा। और बायोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि अदर ऑर्गेनिज्म को देख के हम लोग, जैसे हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को देख के क्या रिएक्ट करते हैं। तो चेंजेस थ्री टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। नाउ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, डाइवर्सिटी इन द लिविंग। डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, जैसे कि हर्ब्स है, श्रब्स है, ट्रीज है, इंसेक्ट, डॉग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, जो भी हम सारे लोग देखते हैं, हमारे चारों तरफ जितना कुछ भी दिखता है वो सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे जो हमने एक डाइस जिसको देख सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह जो कि अंडर माइक्रोस्कोप है, ये सारे को हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंदर ला सकते हैं। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स फॉर्म्स, मतलब जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है प्रेजेंट अर्थ पे, वो सबको हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंदर ला सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी नंबर एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ, जो भी अर्थ पे है जिनको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, बर्ड्स, कैट, पेड़ पौधे, हर्ब्स, रफ, जितने कुछ भी है सबको हम लोग बायोडाइवर्सिटी का बोल सकते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सो वी एक्सप्लोर सम न्यू और इवन ओल्ड एरियाज, न्यू ऑर्गेनिक फाउंड टू बी डिस्कस। तो अकॉर्डिंग टू IUCN, number of species known is 1.7 to 1.8 million, 8 million. Okay. अब IUCN का फॉर्म यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड natural resources. So according to International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, number of species known till now is between 1.7 to 1.8 million. So we need to there's so इतने सारे species found है, तो हम सबको इतने बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएगा सबके नाम में। तो नीड टू हम लोग को एक सब सारे स्पीसीज़ को एक स्पेसिफिक नेम देना कि पूरे कंट्री, पूरे होल वर्ल्ड में हम लोग उस चीज़ को बस उसी नाम से जाने। सो वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known by the same name all over the world। इसी प्रोसेस को एक किसी स्पीसीज़ को सेम नाम से पूरे वर्ल्ड में जिस जाना जाए एक ही नाम से, उसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ओके, नोमेनक्लेचर, एक नाम तो दे दिया। अब नोमेनक्लेचर और या फिर सब नेम दे रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग को पता हो कि वो कहाँ से बिलोंग, वो जो स्पीसीज़ है वो कहाँ से बिलोंग करता है। सो नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली, मतलब उसका
एक डिस्क्राइब, जैसे कि अभी ह्यूमन क्या ने बोलना है तो पता है ना कि दो उसके पास हाथ है, दो पाँव है, आँख कहाँ है, ऐसा है, सारा बॉडी स्ट्रक्चर सबको पता है। तो उससे पता चलता है कि हाँ ये इंसान है। अब कुत्तों का है कि वो उनके पास 4 पाँव से चलते हैं। तो सबका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होता है कि, तो उससे हम पहचान पाते हैं कि हाँ वो ये पार्टिकुलर स्पीसीज़ है। उसी तरह नेमिंग देने से पहले हम लोग को अच्छे से उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए और किस चीज़ से वो अटैच्ड है, कहाँ से वो, सो इसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। उसके बारे में सारा नॉलेज लेने के लिए उसे हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। जैसे प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स, जो प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम होते हैं उन वो प्रोवाइड करते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। दिस is responsible for giving names to plants. Whatever new plants are found or we see some plants, we don't know what's the name, then they are responsible to give names to the plants. And just like for animals, ICGN is responsible for giving scientific names to them, International Code of Zoological Nomenclature. Now we will come to binomial nomenclature. It is developed by Carolus Linnaeus. Binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus. He explained that each name has two parts. If a species has a name, then it contains two parts. The first part comprises the generic name, means genus. First name is always genus, and second part is a specific epithet. It means second contain species, which species he or it belongs. Now what are the rules of binomial nomenclature? मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नाम देने के लिए हमें कौन कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए जो कि ICZN और ICBN के अंडर आए। मतलब हमें वही किसी भी एनिमल्स और प्लांट्स को हम वही नेम दे सकते हैं और उसी पैटर्न से नाम दे सकते हैं जो कि ICZN और ICBN ने दिया है। हम कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी अपना पैटर्न दे दें, हमारा मन जो है सो उस पैटर्न दे दें तो वही नाम हो जाएगा, वैसा नहीं होता। एक पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न जो फॉलो करते आ रहे हैं उसको फॉलो करते हुए ही हम किसी भी स्पीसीज़ को नाम देते हैं। तो क्या वो रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग ICZN और ICBN नेम्स देते हैं? पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जो भी बायोलॉजिकल नेम्स रखा जाता है वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। ये मतलब ही नहीं बनता कि वो कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, वो कहीं से भी वर्ल्ड में कहीं से भी आए हों, उनका नाम लैटिन लैंग्वेज में ही रखा जाता है। ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली वन नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स। एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया जाता है जो कि 2 वर्ड्स होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था 2 वर्ड्स। पहला जो कंसिस्ट होता है बायोलॉजिकल, जो पहला जीनस रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कंपोनेंट में स्पेसिफिक कौन सा जीनस है और कौन से स्पीसीज से है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बस एक ही नाम हम रख सकते हैं जिसमें उसका जीनस और स्पीसीज बताते हैं। हम लोग सबसे पहला जीनस बताते हैं और सेकेंड स्पीसीज बताते हैं। Scientific name is printed in italics or underlined separately when handwritten to indicate the Latin origin. साइंटिफिक नेम जब हम लिखते हैं तो उसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो वो हमेशा इटैलिक में होता है। मतलब लैटिन लैंग्वेज में उसका बायोलॉजिकल नेम्स होता है और जब उसको प्रिंट कराते हैं तो वो इटैलिक स्टाइल्स में प्रिंट होता है। या फिर अगर हम हाथ से अपने कॉपी पे लिख रहे हैं हैंड रिटन तो इट शुड बी अंडरलाइंड। ओके, तो फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीन, जो पहला वर्ड है वो तो मैंने आपको बताया था कि पहला वर्ड जो होता है वो किसी भी साइंटिफिक नेम का पहला नेम जो होता है वो जीनस होता है और सेकंड नेम जो होता है वो स्पीसीज होता है। तो फर्स्ट नेम डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल। जो जीनस हम लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है और जो हम स्पीसीज लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में। तो नेम ऑफ द और उस स्पीसीज़, वो उस ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिस्ट नेम रखते हैं उस साइंटिस्ट का नेम भी हम मेंशन करते हैं उनके नाम में।
तो नेम ऑफ द ऑथर और डिस्कवर्ड इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक इथेटेट स्पीसीज के बाद इन एब्रीविएटेड फॉर्म में हम उनके डिस्कवरर का नाम लिखते हैं। जैसे कि मैंजीफेरा, अंडरलाइन कर देती हूँ, मैंजीफेरा इंडिका, ये जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, जीनस। इंडिका रिप्रेजेंट करता है क्या, स्पीसीज। और लिन जो है वो है डिस्कवरर। द कार्लस लीनियस ने डिस्कवर किया था मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका लिन। इट इज़ ऑन द फॉर्म ऑफ एब्रीविएटेड फॉर्म। ओके, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट एंड ऑथर सिटेशन कलेक्टिवली कॉल्ड एज बायनोमियल एपिथेट। दिस टुगेदर वी कॉल्ड एज बायनोमियल एपिथेट। ओके, तो हम समझ गए कि क्या क्या पैटर्न करना पड़ता है कि हम उसे लैटिन, जो भी बायोलॉजिकल नेम्स लिखे उसे लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म का है वो उसका बस एक ही नाम होगा, जिसमें एक जीनस होगा, एक स्पीसीज होगा। और साइंटिस्ट नेम जो होता है, इस साइंटिस्ट नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स और अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन टू इंडिकेट कि वो लैटिन लैंग्वेज में ही है। द फर्स्ट वर्ड जिसका डिनोट होता है, जो जीनस स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से होता है और स्मॉल लेटर से होता है स्पीसीज। और ऑथर का नाम भी हम लिखते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में। और ये टुगेदर जो हम लिखे स्पीसी, जीनस और डिस्कवरर, उसको हम बोलते हैं बायनोमियल एपिथेट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ नीड वी कैन से। ओके, तो जो फर्स्ट नेम जो ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है, जो कि वैलिड होता है, जो कि ICZN और ICBN के अकॉर्डिंग होता है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस। मतलब उसी को लेके हम, अगर कोई भी नाम एक होता है जो पूरे वर्ल्ड में जाना है, तो उस साइंटिफिक नेम। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम भी होता है कि किसी एरिया में इसको इस नाम से जानते हैं, किसी एरिया में उसको उस नाम से जानते हैं, ऐसा भी होता है। तो जो भी नेम होता है, अगर वो वैलिड होता है और ICZN और ICBN के पैटर्न के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, तो उसे हम लेते हैं एज अ प्रेफरेंस। और उसके अलावा कोई भी वैलिड नेम अगर उसको दिया जाता है तो वो इसका साइनोनिम्स बनता है। ओके, तो जो ICZN और ICBN के अकॉर्डिंग होता है उसको हम लोग एज अ प्रेफरेंस लेते हैं। और उसके अलावा उसका कोई भी वैलिड नेम अगर रखते हैं किसी एरिया, किसी लोकल के अकॉर्डिंग, तो उसको साइनोनिम बोलते हैं। नो नेम्स आर रिकग्नाइज प्रायर टू दोज यूज्ड बाय लीनियस इन 1758 10th एडिशन। सिस्टमा नेचुरी एक बुक है जिसमें कार्नस लीनियस ने लिखा था एनिमल्स के लिए क्या क्या उसका साइंटिफिक नेम होता है। और फॉर प्लांट 1750 में स्पीसीज प्लांटेरम नाम का एक बुक है जिसमें प्लांट्स के लिए लिखे थे। अब बताते कि कैसे लिखना है। अब जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इट इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो। ओके, तो इसका मैंजीफेरा का जो M है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो ये जो है मैंजीफेरा, वो इसका क्या है, जीनस। इट रिप्रेजेंट जीनस एंड इंडिका रिप्रेजेंट्स स्पीसीज। मैंजीफेरा का जो पहला लेटर है, मतलब जीनस का जो पहला लेटर है, वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में होगा। और जो स्पीसीज का पहला लेटर है, मीन्स स्पीसीज का पहला लेटर है, वो होगा हमेशा स्मॉल फॉर्म में। और मैंजीफेरा इंडिका जो कि एक जेनेरिक नेम है, और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। ओके, ये तो हम जानते ही हैं। और इस दोनों को मिला के हम इससे बोल सकते हैं बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम, जिसे हम प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ये तो मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम जो होता है उसको हम लोग इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। ओके, नाउ आई विल शो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नेम्स एंड द साइंटिफिक नेम। तो उनका जीनस क्या है, उनका स्पीसीज क्या है, लेट डिस्कस। ओके, फर्स्ट इज ह्यूमन, स्टार्ट फ्रॉम अस। ओके, ह्यूमन्स, ये इसका क्या है, कॉमन नेम। ओके, अब इसका हमें लिखना है साइंटिफिक नेम्स।
उसके बाद हमारा बताएंगे उसका जेनेरिक नेम क्या है, फिर बताएंगे उसका स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो सबसे पहले ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है एच इन कैपिटल, होमो सैपियंस। ओके, उसका जेनेरिक क्या हो गया, ये जीनस सबसे पहला होता है तो उसको लिखेंगे होमो, और सैपियंस जो उसका स्पीसीज हो गया उसको लिखेंगे सैपियंस। सेकेंड वी विल डिस्कस इज लायन। लायन का होता है पैंथेरा, दैट इज इट्स जीनस लियो। तो जेनेरिक नेम क्या हो गया, पैंथेरा, और इसका ये हो गया लियो इन स्मॉल। ओके, तीसरा डॉग का हो गया कैनिस फैमिलियरिस। ओके, तो इसका जीनस क्या हो गया कैनिस, और इसका स्पीसीज क्या हो गया फैमिलियरिस। ओके, फोर्थ इज क्या बताऊँ, अनियन। ओके, अनियन का साइंटिफिक नेम हो गया एलियम सेपा, तो इसका जीनस क्या हो गया एलियम, और इसका स्पीसीज क्या हो गया सेपा। फिफ्थ इज ब्रिंजल। ओके, ब्रिंजल का क्या होता है सोलेनम मेलॉन्जिना, तो इसका जीनस क्या हो गया सोलेनम, और इसका स्पीसीज क्या हो गया मेलॉन्जिना। अब जैसे सबसे फेवरेट रोज़ का क्या होता है, रोज़ का इज़ वेरी इजी जीनस रोजा इंडिका, तो जीनस इसका हो गया रोजा, और इसका स्पेसिफिक हो गया स्पीसीज हो गया इंडिका। अब जैसे पीजन का कोलम्बा लीविया, तो इसका जीनस हो गया कोलम्बा, और इसका ये हो गया। प्लीज़ दोज जो भी इस वीडियो को देखें, प्लीज़ सबका आपके लिए इतनी मेहनत किया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ताकि आपको भी ईजी हो पढ़ने में, समझ आए। हैंड राइटिंग तो नहीं समझ में आए तो चलेगा तो आप मैनेज कर लेना। ओके, एक क्लास के लिए काफ़ी है, तो कल वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन एंड ऑल। ओके, थैंक यू।